Hello everyone, welcome to my channel Reskill Upskill. The subject which we are going to cover today is child development in pedagogy. Topic will be factors responsible for growth and development. Our goal for today, revision of the concept of growth and development and thorough understanding of the factors responsible for growth and development. So let's start. If we talk about the word child development, many words come in our mind like change, improvement, growth, progress, new, etc. So, child development means when a child is born, his body goes through various new changes, and these new changes leads him towards progress, leads him towards improvement. Gradually, he starts recognizing the face of his parents, he starts recognizing his toys, and so on. And these changes help him in making more independent. So child development means a series of changes which leads towards progress. Now let's come to the concept of growth. Growth is mainly related with the physical aspect of the body. So that means change in size or shape of the body. That is growth. Increase in size, length, height, weight. That is growth. Now let's see some of the words which will help us in understanding the meaning and its characteristics. First of all, increase or change. So growth means increase in height, weight, etc. Or we can say changes in shape or structure of the body. So this is also covered. Next is quantitative. It is quantitative in nature. That means it can be measured easily. We can easily check, we can easily measure the weight of the child, we can easily measure the height of the child. So it is quantitative in nature. Possible to measure. That also we have covered, that we can easily measure the growth of the child as it is just related with the physical aspect. Types of development. First of all, we will talk about physical development. Physical development is also known as growth of the child. ये हम easily predict कर सकते हैं. बच्चे की हाइट कितनी हो गई है, बच्चे का वेट कितना हो गया, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है या उसका वेट डिक्रीज हो रहा है, उसके हेयर के कलर क्या है, उसके आईज के कलर क्या है. तो सो ऑल द फिजिकल ट्रेट्स आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है. इसमें हमें ये पता लगता है कि बच्चा हर इंफॉर्मेशन कैसे ग्रास्प करता है. धीरे धीरे उसको अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना आ जाता है. वो टच करके, फील करके वो चीज़ों को समझने की कोशिश करने लग जाता है. सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें बच्चा सीखता है कि कैसे उसको हर सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, किस तरह से एडजस्ट करना है. लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे बच्चा इंटरेक्ट करना सीखता है. वो ये भी समझ आता है कि डिफरेंट मीडियम्स होते हैं इंटरेक्शन के, राइटिंग है, स्पीकिंग है. नेक्स्ट इज मॉरल डेवलपमेंट. इसमें बच्चा जो है राइट डिसीजंस बनाने लग जाता है. उसको पता लगने लग जाता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग या एथिकली क्या चीज़ें होनी चाहिए and what he has to do in a particular situation. If you want the detail of this video, detail of types of development, then you can check out my other video which is types of development. उसमें हमने सारी development के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. Now let's understand the difference between growth and development. Physical sense, if we are talking about growth here, physical sense, इसका मतलब है कि growth जो है सिर्फ physical aspect से related होता है. जैसे बच्चे का वेट बढ़ना, उसकी हाइट बढ़ना, ये सब ग्रोथ के अंदर आता है. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल चेंजेस. मतलब उसमें सब तरह के जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. उसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं. फिजिकल के साथ साथ उसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल. सो इट मीन्स डेवलपमेंट जो है ओवरऑल चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव इन नेचर. ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड होता है, इसलिए वो इजीली मेजर भी हो सकता है. देन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. डेवलपमेंट फिजिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूड करता है और बाकी एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड करता है, इसलिए वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है.
ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड होती है तो वो इजीली मेजर हो सकती है। हम इजीली बच्चे का हाइट बता सकते हैं कि कितनी हाइट है, इजीली हम बता सकते हैं उसका वेट कितना है, उसका वेट पहले कितना था, अब उसका वेट कितना है। सो इट कैन इजीली बी मेजर्ड। इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। हम उसकी फिजिकल एस्पेक्ट तो इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बाकी एस्पेक्ट्स इजीली मेजर नहीं कर सकते। हम परफेक्टली नहीं बता सकते कि ये बच्चा सोशली कैसा है या ये बच्चा मॉरली कैसा है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल चेंजेस, जबकि ग्रोथ जो है उसका एक पार्ट है। डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट। डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर बच्चा फिजिकली अच्छे से ग्रो कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि वो बाकी एस्पेक्ट्स में अच्छा करे, जैसे वो सोशली अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअली अच्छा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो सकता है बच्चा फिजिकली बहुत अच्छा है, इज गुड इन स्पोर्ट्स, बट ही इज नॉट गुड इन अदर एस्पेक्ट्स। मॉरल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, जरूरी नहीं है कि वो उन एस्पेक्ट्स में भी अच्छा होगा। डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। लेकिन अगर बच्चा फिजिकली फिट नहीं है तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो बाकी एस्पेक्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता। सो डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ जो है वो पूरी उम्र हमारे साथ नहीं चलती रहती, नहीं बढ़ती रहती है। ऐसे जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हमेशा हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होती रहती है। जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे मॉरल है, सोशल, इंटेलेक्चुअल, उसमें चेंजेस जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलते रहते हैं। अब हम करेंगे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस, जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ का वेदर कैसा रहता है, वो भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। जिस स्कूल में वो जा रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इज इट encouraging, is it a positive environment, that also affects in a positive way in the growth and development of a child. वहाँ का नेबरहुड कैसा है, उसी अकॉर्डिंगली बच्चा जो है सोशली इमोशनली डेवलप करेगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। क्या घर घर में बच्चे के ऊपर खाने के लिए ध्यान दिया जा रहा है, क्या उसको बैलेंस डाइट दी जा रही है, क्या उसको प्रॉपर टाइम पे मील दिया जा रहा है। ये सब चीजें जो है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इफ द चाइल्ड इज बीइंग गिवन मील properly, proper nutritional diet, then he or she will develop in a healthy way. Heredity, कुछ traits जो हैं वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। फिजिकल एंड सोशल ट्रेट्स जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, height, weight, etc. So heredity also plays an important role in the growth and development of a child. Next is environment. कंसेप्शन से लेकर बच्चे की जो एनवायरनमेंट कैसा रहता है, उस वो चीज़ जो है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करती है। क्या जिस एनवायरनमेंट में वो रहा है, जिस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहा है, इज इट अ पॉजिटिव एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, then definitely the child will develop overall in a very good manner. Next is socio-economic status. अगर कोई बच्चा ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पे विच इज़ फाइनेंशियली साउंड, उसको पेरेंट्स लर्निंग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। जबकि जो बच्चा पुअर फैमिली में ग्रो कर रहा है उसको कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। So this also affects the growth and development of the child. Familial influences. Family plays an important role in the growth and development of the child. If the parents are spending quality time with the children,
अगर वो हर उनकी एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं, उनको पता है कि उनका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, then definitely the child will grow in a healthy way. So family affects the growth and development of the child. Stimulating environment. What kind of environment the child is getting since conception in the family, in his school or in the neighborhood? क्या बच्चे को एक encouraging, एक positive environment मिल रहा है? अगर बच्चे की छोटी से छोटी अचीवमेंट्स पे उसको प्रेज किया जाएगा, उसको एक encouragement दी जाएगी, so this will help him in growing well. This will help him in growing in a positive manner and develop overall. So now we know that development is a continuous process which brings progressive changes and leads the child towards improvement. Growth is also a part of development. Development is a wider concept और growth उसका एक part है क्योंकि growth is only related with the physical sense. Growth is quantitative whereas development is qualitative in nature. Growth जो कि physical aspects के साथ related होती है वो हम easily measure कर सकते हैं, easily predict कर सकते हैं. But जो development है वो qualitative है, इसलिए हम उसको इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हम ये नहीं बता सकते कि बच्चा सोशली, मॉरली, इमोशनली कितना एग्जैक्टली स्टेबल है. वी कांट मेजर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. Factors affecting growth and development. It includes heredity, environment, socio-economic status, nutrition, geographical influences, stimulating environment, and familial influences. I hope you liked the video. Please like, share, and subscribe to Reskill Upskill. Keep learning and keep improving your skills. Thanks for watching.